رزق، خوشیاں، خوشحالیاں، راحتیں، رحمتیں، آفیت نہ ہو، عزت اور مال میں کبھی کمی نہ ہو، صحت میں کبھی کمی نہ ہو۔ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ دل کے اندر رزق کی برکت کے وعدے ہیں۔ روایت یہ بھی ہے کہ آمین اس میں اعظم ہے۔ جو آمین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، جو مراد مانگے گا، جو چاہت مانگے گا، صحت، عزت، دولت، رزق کی کمی کا گلہ کرنے والے بس اس عمل سے دوستی لگائیں۔ رزق بے پناہ، دولت بے پناہ، پیسہ ہی پیسہ آئے گا۔ چاہے آپ دکانیں خریدیں، پلاٹ خریدیں، کوٹھیاں خریدیں، بنگلے خریدیں، اللہ پاک آپ کو دے گا۔ گاڑیاں خریدیں، اللہ پاک آپ کو بے حساب دے گا۔ آپ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی گاڑی میں ہوں گے۔ بس یہ عمل آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں، کاروبار میں اضافہ عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ چھوٹا سا یہ عمل ہے، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ جلدی سے حضرت صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لیں دوستو، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو جو میرے ویورز ہیں، جو میرے سبسکرائبر ہیں، ان کا سے شکریہ جو میری ویڈیو واچ کرتے ہیں، اسپیشلی فور پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، ادر کنٹری کے اندر، یو کے، یو ایس اے، یو اے کے اندر۔ تو دوستو جو بھی حضرت صاحب عمل بتاتے ہیں اس کو آپ کیا کریں، بے شک اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی عمل بتائیں وہ آپ لازمی کیا کریں۔ میں نے اپنے چینل پر کافی سارے حضرت صاحب کے ویڈیو کلپ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں جس سے خیر و برکت ملتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک عمل آپ کا جو ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک بے حساب رزق دے گا، وہ آپ کو نہیں پتا۔ عمل پر عمل کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک کسی نہ کسی عمل کے ذریعے آپ کو بے حساب رزق دے گا، دولت دے گا۔ آپ کے حالات پھرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کے حالات چینج ہو گئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لیٹ سی۔ جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ رب میری روزی کبھی کم نہ کرے، دولت میں کبھی کمی نہ ہو، کبھی کمی نہ ہو، عزت اور مال میں کبھی کمی نہ ہو، بالکل کبھی نہ ہو، صحت میں کبھی کمی نہ ہو، یہ ہر کوئی چاہتا ہے۔ وہ چاشت کی نماز کی 4 رکعت نماز نفل پڑھ لے اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے۔ سبحان اللہ، بہت سے سنیے گا، بہت خوبصورت عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے اور آسان ہے۔ چاشت کے نفل کے اندر رزق کی برکت کے وعدے ہیں، وعدے ہیں رزق کی برکت کے، بے شک چاشت کی نفل کے اندر رزق کی برکت کے وعدے، بے شک ایسے ہی، اور انوکھے وعدے ہیں، بے شک انوکھے وعدے ہیں، بالکل ایسی حضرت صاحب صحیح بتا۔ چاشت کے نفل پڑھ لیں، یہ عمل آپ نفل پڑھنے کے بعد، نفل پڑھنے کے بعد ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، بس اور اس کے بعد آمین کہہ دیں، اور آمین کہہ دیں، اور پھر سارا دن آمین کہتے رہیں، کہتے رہیں۔ محدثین نے اسم اعظم کی جو کتابوں میں روایات بیان کی ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آمین اسم اعظم ہے۔ جو آمین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، جو مراد مانگے گا، جو چاہت مانگے گا، صحت، عزت، دولت، رزق، خوشیاں، خوشحالیاں، راحتیں، رحمتیں، آفیتیں، جو مانگے گا اللہ آمین کی برکت سے وہ اس کی ضرورت کو غیب سے پورا کرے۔ سبحان اللہ، آمین کی برکت سے چاشت کے نفل پڑھیں، سبحان اللہ، اور چاشت کے نفل پڑھ کے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، ایک بس، بس، اور پھر سارا دن آمین کہتے رہیں، پڑھتے رہیں آمین، سارا دن آمین پڑھتے رہیں، وضو بے وضو پڑھتے رہیں وضو سارا میں دن، آمین، اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے کہ مولا میری اس آمین کو قبول کر کے میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے۔ بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، گھر چاہیے، رزق چاہیے، نوکری چاہیے، دولت چاہیے، رزق حلال چاہیے، اللہ کے خزانوں سے صحت چاہیے، عافیت چاہیے، جادو بندشوں کا توڑ چاہیے، آمین، اور غیب کے خزانوں سے برکتیں، مددیں چاہیے، تو سارا دن آمین کہتا ہے، آمین، 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 سارا دن آمین کہتا ہے، سبحان اللہ، صرف ذکر، اچھا ذکر، سبحان اللہ۔ اور چاشت کے 2 نفل، 4 نفل پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ صرف دے دو، صرف 10 منٹ دے دو، 24 گھنٹے میں منت کرتا ہوں، صرف 10 منٹ دے دو، اور 1 منٹ لگیں گے سورۃ فاتحہ پڑھنے میں، وہ بھی 1 منٹ سے کم لگے گا، بے شک، اور سارا دن آپ کیا کہتے رہیں؟ آمین پڑھتے رہیں، اور سارا دن آمین، آمین کہتے رہیں، کہتے رہیں، کہتے رہیں۔ زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں، چند دن، چند ہفتے یہ عمل کر کے دیکھیں،
रिजल्ट आपको हथेली पे मिलेगा और आपका मन कहेगा कि जिंदगी में इसको छोड़ो ना। मैंने कई नाकामों को कामयाब होते देखा, चंद दिनों मैंने कई फकीरों को तवंगर होते देखा, मैंने कभी नाकामों को जिंदगी की कामयाबियों के सेहरे और ताज सर पे धरे देखे, और ऐसे लोग जो जिंदगी थे आजिज थे कि आप तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मैंने तो देखा है। बिल्कुल ऐसे ही हजरत साहब बता रहे हैं, बेशक अल्लाह पाक देता है, रिज़्क़ गैब से देता है, और आज के नफल में अनोखी बरकतें हैं, जिस तरह हजरत साहब बता रहे हैं। बहुत प्यारा खूबसूरत ये मतलब के अजायब घर में देखा हजरत साहब ने जादू तोड़ का तोड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 दिसंबर पीर का दिन है। पीर का दिन 4 दिसंबर। ये मैं काहिरा में हूँ। काहिरा में एक बहुत बड़ा मजस्मा है, ऊपर इंसान है और नीचे शेर है। वो कहते हैं कि ये चीज़ इसलिए है कि हिफाजत का निज़ाम है। हिफाजत का ये उनके माबद खानों में, उनके महल्लात में और उनके इर्द गिर्द में ये चीज़ें इसलिए होती थी ताकि हिफाजत का निज़ाम रहे। असल हिफाजत है जान की, माल की, रिज़्क़ की, चीज़ों की असल हिफाजत है। और इंसान शुरू दिन से हिफाजत के लिए जो है कोशिश करता रहा, हिफाजत के लिए मेहनत करता रहा। ये हिफाजत का निज़ाम है। उस दौर के जादूगरों ने, काहिनों ने ये उस दौर की तरतीब बनाई है। आप इसको इस तरफ से देखें, और इधर बहुत सारी और चीज़ें भी बेशुमार पड़ी हैं, बहुत सारी बेशुमार चीज़ें पड़ी हैं। इन सब का ताल्लुक भी, और उनके ऊपर जो हुरूफ लिखे हुए हैं, नक़ूश लिखे हुए हैं, हिफाजत का निज़ाम है। और एक वजीफ़ा बहुत ताकतवर है और बहुत ताकतवर है। फ़िरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। जहाँ भी दर्द हो, तकलीफ हो, वहाँ ये वजीफ़ा बहुत ताकतवर है। 3 बार, 7 बार, 9 बार सांस रोक के पढ़ें। दाढ़ का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कोई भी दर्द है, उसके लिए बहुत ताकतवर चीज़। अब अगला अमल जो मिस्र के बहुत बड़े जादू, बहुत बड़ी तिलिस्माती दुनिया, और तिलिस्मात खैर के भी होते हैं, शर के भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बहुत बड़ी वो दुनिया जो अक्ल से मावरा है, सोचों से मावरा है, उसका एक अमल कराऊंगा। फ़िरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। बड़ी ताकत है इन लफ्ज़ों। ये कई बार अबकरी में भी छपा है, और ये अमल मैं आपको कराऊंगा, लेकिन एक तसव्वुर के साथ, एक कैफियत के साथ। तसव्वुर ये करें कि मेरी दाएं मुट्ठी में अल्लाह की रहमत, ताकत और अल्लाह की कुव्वत है। पहले ये तसव्वुर करें कि मेरे दाएं हाथ में अल्लाह की रहमत, अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत है, और मेरे बाएं हाथ में सारे रोग और सारे दर्द और सारे जादू और सारी जिन्नात और सारे तावीज़ात और मेरे ऊपर सारी बीमारियां और सारी तकलीफ़ें हैं। और मैंने ये पढ़ के अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ की मुट्ठी खोल के ऐसे मारना है, और सारी चीज़ों के ऊपर बल नक़सिफ़ो बिल हक़ के अलल बातिल। अल्लाह कहते हैं हमने हक को बातिल के ऊपर मारा। आगे फयद पूछ रहे हैं फयद में फाइजा हुआ ज़ाहिर। बड़ी ताकतवर आयत है। हमने हक को बातिल पे मारा और बातिल का भेजा उठा के हमने तोड़ दिया। ये अमल जो अभी आपको मैं कराने लगा हूं, ये अमल भी 3 जुमेरातें चलेगा। आपके दाएं हाथ में क्या है? अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का सच्चा निज़ाम। और बाएं हाथ में सारी मुसीबतें, तकलीफें, रोग, दुख, परेशानियां। और हम अल्लाह के नाम का तसव्वुर करके पढ़ेंगे। फ़िरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। 11 दफा पढ़ के ना, फिर इस हाथ, दोनों हाथों को खोल के एक हाथ को दूसरे हाथ पे ऐसे मारेंगे, और इस तसव्वुर से मारेंगे, पूरी ताकत और तसव्वुर से मारेंगे, पूरी ताकत और तसव्वुर से। मुट्ठियां बंद करें। आपके दाएं हाथ में अल्लाह की ताकत और कुव्वत,
आपके बाएं हाथ में सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे जादू, सारे जिन्नात, सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां। तसव्वुर सख्त बना, तसव्वुर तवज्जो से बना, तसव्वुर ध्यान से बना, तसव्वुर यकीन से बना, यकीन के आगे भी यकीन से बना। अब हम 11 दफा पढ़ रहे हैं, फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद, 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 कामयाब शुद, फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद, फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद, फिरौन गर्क शुद। अल्लाह के नाम में ताकत है, अल्लाह के नाम में कुव्वत है। दोस्तों, हजरत तारिक महमूद साहब ने बहुत खूबसूरत अमल बताया जिससे आपके रिस्क में, कारोबार में इजाफा होगा। आप फकीर हैं तो तमंगरी आ जाएगी आपको, आपके पास अल्लाह पाक गैबी रिज़्क देगा, दौलत देगा। आपके पास कहाँ से गाड़ी आ रही है पता भी नहीं, कहाँ से घर आ रहे हैं, बंगले, प्लाट, दुकानें, कारोबार में इजाफा, नौकरियाँ अल्लाह पाक देगा, गैबी मदद फरमाएगा। चाँद के रिस्क में अनोखा राज है दौलत का, रिज़्क का। जिस तरह से साहब बता रहे हैं वीडियो के अंदर, चाँद के 4 नफल पढ़ने हैं, तरीका उन्होंने वीडियो में बताया हुआ है। उस तरीके से आपने लाजमी पढ़ने, अल्लाह पाक आपके रिस्क में, कारोबार में इजाफा फरमाएगा। तो ये अमल बहुत खूबसूरत है, 10 मिनट का अमल है और सूरह फातिहा 1 मिनट लगता है पढ़ने में। सारा दिन आपने आमीन कहना है, सूरह फातिहा पढ़नी है और आमीन कहना है, और उसके बाद सारा दिन आमीन आमीन कहते जाना है, जिस तरह से साहब वीडियो में बता रहे हैं। तो इससे आपके रिज्क में, कारोबार में अल्लाह पाक गैबी मदद फरमाएगा, अल्लाह पाक रिज्क में इजाफा फरमाएगा। और एक अमल हज़रत साहब ने ये भी बताया, अगर दुख है, तकलीफ है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, अब देखें ना, दौलत की भी परेशानी, रिज्क कारोबार की भी होती है। तो ये परेशानी है रिज्क की, दौलत की, रिश्ते की, औलाद की, वैसे परेशानी, जादू जिन्नात, जिस तरह से आप बता रहे हैं, इस तरह कोई मसला है, परेशानी, मुश्किलात ख़त्म करने के लिए ये अमल करें। 11 दफ़ा हज़रत साहब ने बताया, 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, मज़ीद आगे भी वीडियो में आप सुन लें, जिस तरह से आप बता रहे हैं। 11 दफ़ा उन्होंने अमल करवाया भी। फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। दाएं हाथ को ऐसे मुट्ठी बना लें और जो बायां हाथ है इसके ऊपर आप ऐसे मारें जोर से, पूरी ताकत के साथ। मुश्किलें, परेशानियां अल्लाह के हुक्म से दूर। तो दोस्तों, बहुत खूबसूरत अमल थे। 2 अमल हज़रत साहब ने बताए। एक अमल उन्होंने बताया चास के नफल का, और दूसरा ये अमल फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। तो ये 2 अमल बहुत खूबसूरत और ताकतवर अमल है। इंशाल्लाह अगर आप ये करेंगे, अल्लाह देगा, अल्लाह पाक भी मदद फरमाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर ले। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनका अगेन शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।